But it's all bad. Hello, everyone. Good evening. Thank you so much for joining. Welcome to today's Tribe Meetup. You all know that today, again, we are going to discuss about the most important things that are there in our life, the most important centers, actually, the hubs of our body, which are directing us, actually. Silently, they are directing us to get into certain things, the mood swings that we have, the kind of food that we like, the kind of relationship that we enjoy, the wealth that we have in our life. Everything is actually directed by someone sitting inside us, someone or something, you can say that. And that someone or something is nothing, floating in the invisible realm. It is actually there inside your body, and you will be acquainted with all that. So before going into deep into it, let me just welcome each and every one of you with all our heart from the entire team of Brain to Body Revolution. I am Supriya, and my friend Soumya is there with you, and she'll be giving a brief intro of what we did last Friday, and then we'll capture the another part of us. Okay, yeah, yes, Soumya, over to you. Oh, thank you, Dee. Thank you so much. So to give you guys brief, a majority of you were there, but Mhm. for the few who are new here for this class, last week what we did was we saw how chakra originated, the system of chakra, because knowing history makes it more effective. जब तक उसका even if you know where your food is coming from, you will appreciate it more. You have a lot of gratitude and recognition for that. If you know where your clothes are coming from, who made it, who stitched it, how they did it, when you know understand this, when you're wearing it, you feel that that gratefulness in your heart. So that is the reason we there's a lot of noise about chakra healing in the social media world and in our world as well, right? A lot of people giving a lot of info right, left and center, and we really wanted to give you solid reason why Brain to Body, which is a scientific organization who are working on the mindset, who are working on the body, is going into something like this, which is considered as something like a magic kind of a thing, right? So we understood that it has originated from Vedas. The Upanishads, in Veda, there was no chakra system. They preached about prana, the life force, the intelligence that is within you that makes you you, that is alive always. Even when you are asleep, it is alive. Even when you are dead, almost, it is still there. Only when it leaves completely, you become a body, right? That is that intelligence that we talked about. That is something that you cannot express. It is something that is only to be felt. That we understood. That came from Vedas. And then Upanishad enhanced it a better, said you should, everybody have access, be connected to this pranam. We get so lost in our day-to-day life, in our senses, in our five organ senses, that we forget that there is a life force. Only when you're connected to this life force does the meaning of life become clear. All your problems, all your challenges will melt away because you are connected to the main life force. You know what leads your life. But still, there was no chakra system in Upanishad. Only when the Tantric revolution or Tantric yoga, that is the class or the scholars who started preaching that you can make use of all your senses to attain this connection in your body, because we all have something called sukshma sharira, subtle body, a subtle energetic body that you can sense when you feel that electrical signals going out, going inside your body. That is the subtle body that is inside you. So to have, to be aware, to be in control, to modify your life, you need to understand your subtle body. And for that, since Vedas and Upanishads said you have to abandon everything and go and pursue this, but the Tantric yoga said no, you can still use your senses, you can still be in the society, you can still be doing your karma that you are, but still be able to unlock these potentials within you, to clear these energies within you, because you are ultimately an energy body. So there should be free flowing energy all the time. But due to we get so involved in our senses, we create lots of blockages in this free flow. And Tantric Yoga said you can still be here, but still be able to do it. And that's when they introduced chakra system to help us all visualize it better, to connect with it better. Because when I say prana, there is nothing coming in front of your eyes. Am I right? There is a life force. It's utter blank. But when I say chakras, you're starting to see, oh, red, yellow, green. And this red, yellow, green and all, it's from Western world. The original chakra that was developed has actually no colors. They have just highlighted, they are like
different systems of chakra. There's some people have said 5, some people have said 6, some people have said 8, some people have said 9, depending who the teacher was and who the lineage was. But a Westerner came, and his name was Dr. John Woodruff. He came, he took this chakra system and he started developing it into the chakra system that we have today, that is root, sacral, and all that. He gave the names, then the geometry was added, then the color was added, then the mantras, the beach mantras were added, the visualizations were added, the I am, the lines that we use, affirmations that were added, all this so that you can feel the connect better. So today, what my beautiful partner would be telling you is how we get so lost in our senses and create these blockages, and where all these blockages appear to be, and what do they signify, and how we are helping you to unblock it and understand that power is ultimately within you. That with that, I'll hand over it to my beautiful partner. Thank you for this opportunity, Dee. Thank you, Soumya. You're such So a shocker. yeah, so thank you guys, thank you so much. And you now understand what Soumya told us, that it is something after the death of Christ that we, after the birth of Christ, that we came to know about all these things due to the tantric texts that we have, right? So the thing is, now if I ask you, you may raise your hand if you feel that you plan for something, but it doesn't come into execution. You have lots of plan of doing something. Maybe you want to buy a property somewhere, you have chalked out the plan, but you still are not going to get into the conclusion. Or okay, or you have some dream job to join, you are getting lot of opportunities, you are applying somewhere, but you are not getting anything as a conclusion part. अगर ऐसा है तो भी आप बोल सकते हैं. और इफ you are actually experiencing some unexplainable pain in your body, आपको पता नहीं कहाँ से आ रहा है, द टेस्ट रिजल्ट्स आर कमिंग फाइन, व्हेन यू आर गेटिंग द टेस्ट रिजल्ट्स एवरीथिंग इज फाइन, बट देयर इज समथिंग इनएक्सप्लिकेबल इन यू दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट you are sad. You have your husband supporting you, you have your job supporting yourself, you have your children, but still you find yourself alone somewhere. If all these things are happening with you, you may just raise your hands and just tell us why is it so in your life. If you think that yes, I am actually experiencing all these kind of things or one of this thing, then it certainly means there is something, some blockage there in the energy centers in your body. And where does these energy centers come? This is nothing related to complete spirituality. पूरी तरह से spirituality नहीं है. It is actually science, neuroscience. According to neuroscience, we see, आपको पता है ना, जैसे कि बस बस स्टॉपेज होती हैं. एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड में आप बहुत सारी बसेस मिलती हैं आपको, या फिर ट्रेन का स्टेशन है, वहाँ पर यू विल हैव मेनी ट्रेन्स, है ना. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएंगे. मुझे अगर दिल्ली से कोलकाता जाना है तो आई विल बोर्ड वन ट्रेन, किसी को कहीं से कहीं जाना है तो दे विल बोर्ड वन ट्रेन. तो ऐसे करके हम लोग ट्रेन पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो दिल्ली अगर है, अगर मान लीजिए राजधानी ट्रेन की मैं बात करूँ, तो दिल्ली से, यानी कि capital of country, say that Rajdhani trains connects all the capitals. It will go to Kolkata, it will go to Mumbai, it will go to all the main major cities, it will go there. The same way, all the nerves in our body are coming from the brain and through your spinal cord spreading across your body, है ना. आपके बॉडी को चारों तरफ से जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के जरिए आपके जो नर्व्स हैं वो कनेक्ट करते हैं. सो आपका जो सूक्ष्म शरीर की आपका बात की है अभी सौम्या ने, द माइक्रोकॉज्म, योर इंटरनल बॉडी इज एक्चुअली आपका स्पिरिचुअल बॉडी जो है, और आपका जो एनर्जी है, देर इज समथिंग बिटवीन दैट, दिट्स लाइक एन इंटरफेस एक्चुअली, जिसके थ्रू आप बात करते हो. आप कंप्यूटर को यूज करना चाहते हो. जब आप कंप्यूटर को यूज करना चाहते हो, यू नीड टू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम. That operating system is something, is interface between you and the computer, which is making you use the computer, right? Without any operating, just suppose there is no windows, will you be able to use the computer lying in front of you? You will not be able to, because you know windows के जरिए ही आप माउस यूज करते हो, आप कीबोर्ड यूज कर सकते हो, तभी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को या फिर अपने हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेन. सो द सेम वे our subconscious mind is carrying lot of software, the software to run various organs of our body, है ना. तो आपके जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स तक जो मैसेजेस पहुंचते हैं आपके न्यूरल नेटवर्क के जरिए, आपके माइंड के जरिए, ऑल दो सिस्टम्स आर एक्चुअली कलेक्टिंग देमसेल्फ इन अ जंक्शन.
जंक्शन होता है ना, जैसे कि अगर ट्रेन स्टेशन में जंक्शंस होते हैं, वो जो जंक्शन होते हैं उस जंक्शन से डिफरेंट जगह जगह पर आपके जो मैसेजेस जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं वैसे। तो उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो है वो प्लेक्सस होते हैं, कुछ जंक्शंस होते हैं जो कि नर्व के गुच्छे जैसे। तो दिस इज एक्चुअली एब्सोल्युटली साइंटिफिक थिंग कि आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वहां पर छोटे छोटे यूं स्पाइन के जरिए गुच्छे होते हैं। दिस ब्रेन स्टेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू। ये जो ब्रेन स्टेम होता है ना, इट कैरीज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी कोई सर्जन वगैरह जब ब्रेन पे ऑपरेट करते हैं ना, दे आर वेरी केयरफुल कि वो ब्रेन स्टेम को हाथ ना लगाए बहुत वैसे, क्योंकि ब्रेन स्टेम में अगर कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो ब्रेन स्टेम के जरिए आपके न्यूरल नेटवर्क जो है, जो नर्व्स है, दोज नर्व्स आर गेटिंग कनेक्टेड विद योर स्पाइन एंड ऑल द सेंटर्स ऑफ द न्यूरल सेंटर्स जो हैं, जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं आपके मेजर, वो सारे के सारे जो हैं आपके स्पाइन के ऊपर रिजाइड करते हैं। दैट इज एक पिक्चर जो हम लोगों को तांत्रिक एवोल्यूशन के बाद दिया गया है कि आपके नर्व्स के थ्रू आते हैं। तो अगर आप साइंटिफिक तौर पे सोचो या स्पिरिचुअलिटी की तरफ से सोचो, दोनों तरफ से जब आप सोचोगे आपको पता चलेगा कि यस, एवरीथिंग, ऑल द मेजर जंक्शंस, ऑल द मेजर प्लेक्सेस, प्लेक्सेस का मतलब ये होता है कि नर्व्स का गुच्छा, दे लाई इन योर स्पाइन। वहीं से आपके हार्मोन रेगुलेट होना, वहीं से आपका एंडोक्राइन सिस्टम होना, वो सभी के सभी वहीं से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो अगर आप ये देखते हो, हम लोगों को ना बहुत आदत है कि हम वेस्टर्न मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं शुरू से ही। हमारे इंडिया से चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन हम लोग उसको कम भाव देते हैं, पहले पहले भाव नहीं देते हैं। जब तक कोई वेस्टर्नर वहां पर जाकर लेकर जाए, वहां पर जाके उस चीज़ को थोड़ा सा और रिसर्च करके उसको थोड़ा सा और इवॉल्व कर लेता है, और जब वहां पर प्रैक्टिस होना शुरू हो जाता है, तब वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हियर। तो द सेम वे हमारे तांत्रिक रेवोल्यूशन के टाइम पे इन चीजों का निजात हुआ, पता चला, हमने सोचा। अदरवाइज पहले जैसे सौम्या ने बताया कि पहले जो वेदास के हिसाब से ना धर्म माने गए थे कि आपको जैसे 40 साल के बाद या 50 साल के बाद ना आपका ऐसा वाला वो आता है, जैसे गृहस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम में आप जो है अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करते हो। गृहस्थ आश्रम को एंजॉय करने के बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम होता है। वानप्रस्थ आश्रम में आपको हिमालय चले जाना होता है, बिकॉज यू कैन नॉट एंजॉय द बाकी फैमिली लाइफ को या बाकी सारे रिसोर्सेज को जो आपके पास आ रहे हैं या लग्जरीज ऑफ लाइफ को। वो तब बोलते थे कि यू कैन नॉट एंजॉय बिकॉज दैट इज द वानप्रस्थ आश्रम। आपको हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा वो बोलते थे। बट देन जब ये तांत्रिक एवोल्यूशन आया, उन्होंने जब निकाला, उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि नहीं, आप सारे वर्ल्डली प्लेजर को अपने घर के कंफर्ट में एंजॉय कर सकते हो, उसको एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को आप लीड कर सकते हो। ये हम लोगों को पिछली बार का जो हम लोग ट्राइब मीटअप तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नाउ कम्स द टाइम वेयर मॉडर्न साइंसेस जो है वो आगे आए। उन्होंने आके एक्सप्लेन किया न्यूरल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है ना कि चाहे वो डॉक्टर दीपक चोपड़ा हो, चाहे वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो, एवरीवन, ऑल दीज रिनाउंड डॉक्टर्स, दे हैव एडवोकेटेड फॉर दिस। व्हाई? बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। आप देखो, आपने मान लीजिए कोई तार का गुच्छा है आपके पास, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का गुच्छा। हमारे जैसे जब आपने देखा होगा, जिन्होंने भी घर बनाया है, अब वायरिंग जब करते हैं ना हम लोग, तो जो तार के जो बंडल्स आते हैं ना, दे कम इन गोल गोल, एक उसके में आते हैं, वो स्पिंडल सा होता है, उसमें रोटेट होके आते हैं सारे के सारे। क्यों आते हैं? यानी कि उनका जो यान है ना, जो वूल यान है, वो भी ऐसे लपेट के आते हैं ताकि वो आराम से निकलता जाए। बट हमारा जो शरीर जब उत्पत्ति हुई उसकी, उसी तरीके से वहां भी गुच्छे गुच्छे में सारे नर्व सिस्टम्स हैं। उसी तरीके से जब हम लोग पैदा हुए थे, द ऑर्गन विद विच वी वर अटैच्ड विद आवर मदर्स वूम, वहां से शुरू होके पूरे के पूरे जो हमारे स्पाइन में हमारे डिफरेंट नर्व के सिस्टम्स बने हुए हैं। उन डिफरेंट नर्व के सिस्टम्स जो हैं हमारे पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। चाहे वो मोटर कनेक्शंस हो, मोटर का मतलब होता है आपका हिलना डुलना चलना, यानी कि मोटराइज्ड वाला, या फिर न्यूरल चीजें हो जो कि आप वॉलंटरीली नहीं करते, वो अपने आप आपको करते हैं, रेगुलेट करते हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है जब आप वॉलंटरी का मतलब होता है कि जब आप अपने हिसाब से, जैसे मैं अपने हाथों को मूव कर रही हूँ, वो मैं मूव कर सकती हूँ, वॉलंटरीली मूव कर सकती हूँ। जैसे मैं अपने पैरों को कर सकते हैं हम लोग मूव, हम अपने हार्ट को वॉलंटरीली मूव नहीं कर सकते हैं, राइट? तो वो मोटर नहीं है, वो न्यूरल कनेक्शन है। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज मैसेजेस come from the brain to the different parts of your body through the channel of your spinal cord। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वहीं पर ये सारे चक्रास लोकेटेड होते हैं। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या बता रहा है, तो मेजर नर्व के जो प्लेक्सस होते हैं वो आपके स्पाइन के अंदर रिजाइड करते हैं।
ठीक है। तो स्पाइन के अंदर जब वो रिजाइड करते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, अब आपके मूड स्विंग्स अगर हों, आपको अगर किसी चीज में हेल्थ का कोई इशू आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है, तो वहीं से सारा का सारा आपका न्यूरल, जो आपका नर्व है, आपका आपका जो ब्रेन है, वो उन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। वहां से कोई मैसेज आता है। अब आप देखो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। कुछ गर्म चीज आई, आपका हाथ वहां पर पकड़ेगा, फटाफट से आपका हाथ पीछे कर लेगा उसको। करते हो ना, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, क्योंकि आपके ब्रेन तक तब मैसेज नहीं जाता है, आपकी स्पाइन से ही वो रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है कि इसको अपने हाथ को हटाओ, तो आप हटा लेते हो ऐसे करके। सो दिस वे द सिस्टम वर्क्स। तो इसके अलावा जब आपके मूड का होता है बात, मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार मुझे वहां पर इन्वेस्ट करना है पैसे, पता नहीं वहां पर मुझे कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि आपके पास्ट में ऐसा हुआ था ना। जब बार बार सोच सोच के उस बात को आप नहीं बोल पाते, आप अपने फियरफुल जोन में रहते हो, यानी कि आपको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा डर होता है। आपको लगता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूं, मान लीजिए आपका, अगर आपकी सैलरी जो है 2 लाख रुपए महीना है, बट स्टिल आर यू अमंग्स दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू फिक्स इन, कि नहीं नहीं कहीं मेरे सारे पैसे खर्च ना हो जाए। आप खुल के खर्च नहीं करते हो, आपको लगता है कि मेरी सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, मैं सारे पैसे कैसे खर्च करता हूँ, मैं सेविंग की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर्ड। और वो आपका कसूर नहीं है। वो कसूर किस चीज का है? वो आपके अंदर जो आपकी जो रूट चक्रा जो है वहां पर कुछ ब्लॉकेज होगा, उस कारण से आप जो है उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आपके पास वेल्थ होने के बावजूद भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आपके पास अगर मर्सिडीज है, फिर भी आप फ्रीली आप ये सोच रहे हो कहीं उसमें, मतलब आप ऐसा कुछ है कि आपके पास मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन फिर भी यू आर थिंकिंग कि यार वहां पर लेके जाऊंगा कहीं पर मेरे फ्यूल ज्यादा खर्च ना हो जाए। अब मर्सिडीज जिसके पास होती है वो तो फ्यूल का खर्चे की बात सोचेगा नहीं ना। लेकिन दिस हैपेंस व्हेन यू आर इनसिक्योर्ड अबाउट समथिंग, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ विच आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। अब कॉर्टिसोल आपके बॉडी के अंदर सिक्रीट हो गया, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन होते ही आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो गया, आप फ्लाइट और फाइट मोड में चले जाते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह आपको माइंड जिम में आपको बताते हैं कि कैसे आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग के कारण अपने आप को रिलैक्स करना है। जब आप रिलैक्स होते हो, जब आप एलिवेटेड मोड में होते हो, जब आप काम स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, ओनली देन यू कैन रिलैक्स। और दिस कैन बी अचीव्ड बाय एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एनर्जी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन सिस्टम्स। आप जब अपने न्यूरल पाथवेज को जब रिलैक्स करोगे, वो सारे के सारे जो ऑक्सीजन है या सारे के सारे जो मैसेजेस है, वो आपके स्पाइन के थ्रू होते हुए आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, जो बाकी और चीजों को कंट्रोल करता है। आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, वो सारा वहां से जाएगा। लेकिन आएगा कहां से? जब आपका वो जो मैसेजेस है ना, वो क्लियरली आपके ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगा। और ऑर्गन्स तक क्लियरली कब पहुंचेगा? जब आपके जो एनर्जी सेंटर्स है ना, वहां पर ब्लॉकेज नहीं होगा, वो जगह खुली होगी। वो दैट डोर नीड्स टू गेट ओपन टू मेक द अदर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी रिसीव सिग्नल्स इन अ प्रॉपर मैनर। This is how we have to understand that it is completely depending upon the neural centers, totally science thing. So today what we'll be studying is, हमारा गोल यही रहेगा कि हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में जो ब्लॉक्स अगर बन भी गए हैं, कैसे बने हैं और हम कैसे उसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो कंप्लीट जो वायरिंग हो चुकी है, जैसे हो चुकी है, जैसे भी है, आपके पहले के सिस्टम में जो भी आया है आपके पास, वट एवर बिलीव्स दैट यू आर कैरिंग, ऑल दोज बिलीव्स के कारण ही आपको इनसिक्योर फील होता है, या आपको लगता है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाती हूँ, या अपनी चीजों को दबा दबा कर, जिस सपोज यू हैव गॉन टू अ मार्केट प्लेस, वहां पर गए हो आप, वहां पर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, लेकिन आपको ये है, किसी ने आपको बता दिया कि नहीं ये चीज ना, ये वाला ड्रेस आपके ऊपर सूट नहीं करेगा। आप खरीदना चाहते हो पिंक कलर का, पर चूंकि किसी और ने बोल दिया कि आप पर रेड ज्यादा सूट करेगा, आपने अपने आप को सप्रेस किया और आपने वो रेड वाली ड्रेस जाके खरीद ली। ठीक है। उसके बाद यू वांटेड टू चूज मैथमेटिक्स एज योर करियर, बट किसी ने आपको ये बोला आकर कि मैथ्स कैसे, मैथ्स में तो तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मैथ्स तो लड़कियों का काम ही नहीं है बिल्कुल भी, मैथ्स में तो आपको हाईली लॉजिकल माइंड चाहिए, आप नहीं कर पाओगे। बट योर इंटरेस्ट वाज देयर इन द मैथमेटिक्स। वहां पर भी क्या किया आपने? सोचा कि हाँ ये तो मेरे से एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, यहां वहां की बातों को सुनकर आपने उस बात को बिलीव किया। अगेन दैट टाइम यू सप्रेस्ड योर इमोशन। जब आप, जितनी बार आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, उतनी बार यू आर ब्लॉकिंग द बैक योर एनर्जी सेंटर्स।
जितनी बार आप करते हो, आप वहां पर एयर जाने ही नहीं देते हो। वो कर करके अपना, कभी आपका रोने का मन करता है, पीपल लाइक अस, वी टेल यू दैट यू डू नॉट हैव टू गो डीप इनटू दैट सैडनेस मोड एंड ऑल। आपने अपने आपको रोना आ रहा है, बट आपने रोया नहीं, नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है, नहीं नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है ना, ऐसे आप रोए नहीं, यू डिड नॉट फील इट। जब आपने जितनी बार अपने आप को रोका, आपने रिलीज नहीं किया, तो वो चीज आपके चक्रास के अंदर क्लाउड्स के रूप में जमा हो जाती है। वहां से फिर अबंडेंस या फ्री फ्लो कैसे हो पाएगा, मैसेजेस का फ्री फ्लो कैसे हो पाएगा। कभी कोई बहुत खुशी की बात भी होगी ना, तभी आपको लगेगा कहीं कहीं मेरी खुशी ये छिन ना जाए। हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी। वो कब होता है, इस कारण से, मतलब दिस इज अ विशियस साइकिल एक्चुअली। वो चीज होगा तो आपके ब्लॉक्स होंगे, और ब्लॉक्स होगा तो वो आप जिंदगी का मजा ही नहीं ले सकते। तो यही है, आप जिंदगी का मजा कैसे लोगे, उसके लिए योर एनर्जी सेंटर्स में जो है, देयर मस्ट बी अ फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। एनी काइंड ऑफ एनर्जी, इट शुड हैव अ फ्री फ्लो, डायनामिक होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट जो है वो ओनली कांस्टेंट है इस वर्ल्ड का। अगर आपके चक्रास के बीच में मूवमेंट नहीं है, जो एनर्जी का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो रहा है, यू कैन नॉट लिव अ फुलफिल्ड लाइफ। आपके लाइफ के हर एक मोड़ पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड सौम्या? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो आते हैं, शुरुआत से हम लोग करेंगे कि आप जब एक बेबी होते हो, छोटे बेबी होते हो, हम लोग जमीन पे होते हैं, हम लोगों को वहां से सीखना होता है कि कैसे हम लोग जमीन से जुड़े रहें। हम लोगों का रूट चक्रा जो होता है हमारा, जिसको हम लोग मूल आधार चक्रा भी बोलते हैं, वो हम लोगों को अपने मॉम के साथ जोड़ता है सबसे पहले। बिकॉज यू, व्हेन यू वर बॉर्न, यू एक्चुअली वर नोइंग ओनली योर मॉम उस समय पे। आपकी मम्मा जैसे दूध पिलाती हैं आपको, आप उनके साथ कनेक्ट होते हो, तो आपको सेफ्टी लगता है, आपको लगता है कि अगर मैं गिर जाऊं, अगर मैं कहीं गिर जाऊं तो मेरी मम्मा है मेरे को उठाने के लिए। द चाइल्ड इज ओनली बॉर्न विथ टू काइंड ऑफ फियर मेजरली। वन इज फॉलिंग डाउन, एकदम से उसको झटका लगेगा, कुछ भी हो। क्यों होता है वो? क्योंकि कभी ना कभी हम लोग एनिमल्स थे, हम लोग मंकीज थे ना, और पेड़ों पे लटकते थे, तो हमारे ना ग्रिप था वो। कभी ऐसा हुआ कि ग्रिप छूट गया और हम गिरेंगे, वो वाला जो सेंसेशन है वो वहां से आ रहा है, वो वाला फियर वहां से आ रहा है। लेकिन अभी तो हम लोग मंकी हैं नहीं, लेकिन हम लोगों को जब भी कहीं पर कभी भी इनसिक्योर फील होगा, हमको लगेगा कि नहीं, आई एम वी आर लूजिंग द ग्रिप ऑफ लाइफ। if you are feeling that you are losing the grip of life and you are feeling yourself lost in somewhere, that means that there is definitely a security issue। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का इशू है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि सारे के सारे जो रास्ते हैं ब्लॉक्ड हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप उसको खर्च करना नहीं चाह रहे। आपको लगता है कि मैं पैसे जब मैं खर्च कर लूंगा तो वो कम हो जाए, खत्म हो जाएगा। या आप कहीं पर जा रहे हो, अगर मान लीजिए कहीं पर जा रहे हो, और आप बार बार जाके अपना लॉक चेक कर लो, कहीं लॉक खुला तो नहीं। आप कहीं पर पहुंच भी गए, पार्टी में चले भी गए, लेकिन फिर भी आपको लगता है बार बार कि कहीं मेरा दरवाजा घर का खुला ना रह गया हो, यानी कि दैट इज अ सेफ्टी इशू। तो आपको अगर बार बार ऐसा लगता है कि यू फील योर सेल्फ गेटिंग स्टक समवेयर, आपको लगता है कि मेरे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है ना, वो उसका मतलब है आपकी रूट चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, और आपको अपने आप को ग्राउंड करना चाहिए। उसको करने के लिए यू नीड टू हैव ऑल दैट काइंड ऑफ फूड विच विल कीप यू ग्राउंडेड एंड मेक यू फील सेव्ड, क्योंकि मदर अर्थ इज देयर टू सेव यू। ग्राउंडिंग वहीं से शुरू होती है। अगर आपके लाइफ में वो वाला चीज नहीं है ना, सेफ्टी नहीं है, रात को आपको स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता है। आपको ना सोते सोते अचानक से झटका लगेगा कि क्या कहीं कोई आ तो नहीं गया। आपको अलग अलग से आवाजें सुनने लगती। यू कैन नेवर हैव अ साउंड स्लीप इफ योर रूट चक्रा इज ब्लॉक्ड, बिकॉज देर विल ऑलवेज बी अ सेफ्टी इशू। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके सामने कि आप घर का लॉक जो है 7 बार जाके चेक कर रहे हो, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है ना, अगर मेरे मॉम डैड से कोई ऐसी परेशानी हो रही है, कुछ उनके साथ हो रहा है, तो वो मेरे साथ भी होगा। यू प्री अज्यूम दैट एंड यू एक्चुअली गेट दैट ऑल्सो। तो उस कारण से क्या होता है, आपका पूरी तरह से आपका जो सेफ्टी रीजन है ना, आपका जो फंडामेंटल है, वही आपका ब्लॉक है वहां पर। तो फिर आप बाकी लाइफ को कैसे एंजॉय करोगे? उस ब्लॉक को हम लोगों को जरूर से ठीक करना है, और उसकी इम्बैलेंस के कारण आपको कभी भी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। शुरुआत में ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपने आप ही एंग्जाइटी होती रहेगी, एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वेर एवर आई एम गोइंग देयर शुड बी समवन विद मी। आपने देखा है ना कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर गर्ल्स अकेले जा ही नहीं सकती, दे ऑलवेज हैव टू बी अकम्पनीड बाय अ मैन टू रोम। तो हम लोग तो ऐसे जगह में नहीं रह रहे, हम लोग तो सेफ एंड सिक्योर्ड है। अगर आप ऐसा फील करोगे बार बार कि आई एम नॉट सेफ, देन इट विल एक्चुअली बिकम दैट, आपने सोच सोच के उस चीज को कर दोगे।
तो इसीलिए अपने आप को ठीक करने के लिए वी नीड टू हैव फ्री पैसेज ऑफ एयर एंड फ्री पैसेज ऑफ इनॉर्मसनेस इन दैट प्लेक्सिस विच इज कॉल्ड द रूट चक्रा। इसको हम लोग, ये कहाँ पर होता है, सिचुएटेड कहाँ पर होता है ना ये, जहां पर से आपने देखा होगा ना मंकीज का टेल निकलता है ना, तो हम लोग भी पहले मंकी थे, हमारा भी एक कॉकिक्स बोलते हैं उसको, कॉकिक्स रीजन होता है जो टेल बोन होता है, वहां पर इट इज सिचुएटेड द रूट चक्रा। वहीं पर हमारा मूल आधार चक्र होता है, ठीक है। कलर्स के बाद, जैसे सौम्या ने बोला, हमारे कल्चर के हिसाब से वहां पर कोई कलर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, उसको सिर्फ समझाने के लिए हम लोगों को बताया गया है कि आपको रेड कलर का, वरना ना ओब्लिवियन में जब होते हैं ना हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या, इसीलिए वहां पर बोला गया है कि वहां पर रेड कलर होता है। तो आप लोग भी अब आम बोलचाल के हिसाब से आप इसको समझोगे कि हाँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आपका रेड कलर का होगा, बट हाँ, विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को समझाने के लिए वी माइट से दैट क्या आपका रेड कलर का वहां पर होगा। और बिल्कुल आपके लोवेस्ट में पेरिनियल जो रीजन होता है ना, कभी आपने देखा हो, बिल्कुल एनस और पेल्विस का जो जंक्शन होता है ना, वहां पर होता है आपका ये वाला रूट चक्र, ठीक है। उसके बाद समय द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद क्या है, हमारा सेक्रल चक्र आता है। अब सेक्रल चक्र का एक्चुअल पॉइंट कहां पर है, जहां पर आपका पेल्विस एरिया है ना, वो हाइंड साइड में, यानी कि आपका रूट चक्र तो हाइंड साइड में, हाइंड साइड मतलब पीछे की साइड है, और जो आपका सेक्रल चक्र है दैट इज एक्चुअली इन द फ्रंट साइड, है ना। आपके ब्लैडर, अगर फीमेल अगर हो तो ब्लैडर से नीचे वाला जो एरिया होता है ना, वहां पर आपका ये सेक्रल चक्र होता है। और सेक्रल चक्र जो है, इसमें ये क्यों ब्लॉक होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी ना किसी को अपने सेक्सुअलिटी का नहीं पता होता है ना, यू आर अनअवेयर ऑफ दैट, यू समटाइम्स यू माइट बी थिंकिंग कि मैं ये वाले कपड़े पहनूं या वो वाले कपड़े पहनूं, आप शर्मा जाओगे, आप आपको प्लेजर जो है लाइफ का वो आप एंजॉय करने से कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके पास, जैसे मान लो कोई है, बहुत ही फिल्म स्टार है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स की हमने स्टोरी भी देखी है ना, जैसे कि वो था क्या नाम था वो, शाइनी आहूजा, है ना। शाइनी आहूजा वेरी हैंडसम मैन, है ना, इतना सुंदर दिखने वाला, और वो, लेकिन उसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब था। ही वॉज अ एक्टर, वेरी गॉर्जियस, एंड गर्ल्स वर आफ्टर हिम, बट ही, आपको पता ही, अब किसी केस में फंस गया था, तो उसकी लाइफ में वो प्लेजर था ही नहीं। आपके अगर सेक्रल चक्रा में ब्लॉक्ड है, तो आप अपने लाइफ के जो लग्जरी है होने के बावजूद भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। जस्ट सपोज यू हैव गॉट इन हेरिडिटी, है ना, आपको बहुत सारा वो मिला है, आपको बहुत सारा वेल्थ मिला है, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय ओनली। जैसे अनिल अंबानी को बहुत सारा उसको मिला था, ही एक्चुअली हेरिडिटी में उसको बहुत सारा सामान मिला हुआ था, बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली थी, बट ही कुड नॉट एंजॉय इट। अभी अभी वो किसी केस में फंस जाता है, कुछ हो जाता है, यानी कि उसका सेक्रल चक्र में वहां ब्लॉक है, जहां पे लाइफ के प्लेजर नहीं मिलेंगे उसको, है ना। वो चीजें हैं, आपका पैटर्न के हिसाब से जो है आपकी वो चीजें, वो वाला चक्रा जो है ब्लॉक्ड है। अगर आपका वो चक्रा ब्लॉक है, आपके पास वेल्थ आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, आपसे चला जाएगा, आपके हाथों से निकल जाएगा। इस तरह से आप कभी भी कंप्लीट जो एफिशिएंसी है, एक हैप्पी लाइफ है, उसको नहीं लीड कर पाओगे, क्योंकि प्लेजर का, आप अगर कहो ना, प्लेजर का हार्मोन ही आप में से मिसिंग होगा, क्योंकि आप उस चीज को, वहां पर ब्लॉकेज है, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। वेन यू आर विद योर बॉयफ्रेंड, विद योर, इफ यू आर विद योर गर्लफ्रेंड, वट एवर, आप उस समय को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर चक्र ऑफ योर्स इज ब्लॉक्ड, है ना। आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे अपने आप को, आप अपनी बात को किसी को बता भी नहीं पाओगे, व्हाट यू आर फीलिंग। वाई? बिकॉज यू विल बी फीलिंग गिल्ट एंड शेम वेरी ऑफन, बहुत ज्यादा उस जोन में रहोगे, तो आपका ये वाला चक्र यानी कि ब्लॉक्ड है। तब आपको समझ में आएगा कि यस, यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, एंड दैट इज द सेक्रल प्लेक्सिस ऑल्सो। प्लेक्सिस भी होता है, जितने भी ये चक्र है ना, आप चक्र तो हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं एक्चुअली, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने नाम दिया इनको सेंटर्स के नाम से। एक्चुअली क्या है, ये न्यूरोलॉजिकली प्लेक्सिस है। प्लेक्सिस का मतलब जंक्शन, न्यूरल का, नर्व्स का गुच्छा है एक्चुअली, ठीक है। उस गुच्छे का नाम यहाँ पर सेक्रल प्लेक्सिस है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, तो हमारा सोलर प्लेक्सस आता है, ठीक है। अब सोलर प्लेक्सस क्या है? सोलर प्लेक्सस जो है हमारा, वो एक बहुत ज्यादा हमें अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए, व्हाट एम आई, हु एम आई, है ना, हमारे अंदर जो पावर है, हमको अपनी लाइफ को जीने की क्षमता है, व्हेन इफ यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ योर पर्पस। अब जैसे मान लीजिए मैं बन गई इंजीनियर, पर मुझे बनना था हीलर, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मैं इंजीनियर बन के मैं अपने लाइफ को सॉल्व कर ही नहीं पा रही थी। मैं अनफुलफिल्ड रहूंगी, मजा नहीं आएगा, अपने जॉब में जाऊंगी लेकिन ऐसे ही, मतलब लाश की तरह जाऊंगी, वहां पर जाऊंगी, 9 to 5 का काम किया, वापस आ गई, और बस ऐसे, ऐसी वाली लाइफ होगी, फुलफिल्ड लाइफ नहीं होगी ना। क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी जो क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ।
मेरी क्षमता है कि मैं लोगों को समझाऊं, लोगों को रास्ता दिखाऊं, लेकिन एज एन इंजीनियर आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. So that means the purpose of my life is missing. I am being misled by something. And when I am misled in something, I will not be able to enjoy my life culture. अच्छा, वहां से जब हम लोग ऐसे आएंगे तो फैमिली लाइफ अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाती है. घर पे आके ऑफिस की बात, ऑफिस में जाके घर की बात आप जब सोचोगे तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि यू विल नॉट बी हैविंग एनी आइडेंटिटी, लॉस्ट केस रहोगे आप. तो यानी कि आपके सोलर प्लेक्सिस जो है, वो वाला जो गुच्छा है, वहां पर आपकी ब्लॉक है. और उस ब्लॉक को रिमूव करना बहुत जरूरी है. इसको तो हम लोग वैसे भी, अगर हम लोग वैसे कहेंगे ना न्यूरोलॉजिकली भी अगर हम कहेंगे, उसको कहते भी सोलर प्लेक्सिस ही है ना. और वैसे हम लोग कलर के हिसाब से उसको येलो कलर से पहचानते हैं, क्योंकि आपको फिर विजन करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है. तो इस तरीके से अगर मैं आपको बार बार बोलूं कि कोई पर्सन है, मान लो हार्वर्ड से उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसने अपने चॉइस ऑफ लैंग्वेज में था, अपने चॉइस के हिसाब से उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन जॉब करते टाइम उसको उस चीज की जॉब नहीं मिली, यानी कि अगेन लॉस्ट आइडेंटिटी. तो इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अपने आप को अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, अगर आप एक अनफुलफिल्ड जॉब में अपने आप को पा रहे हो, that means you have a block in the solar plexus. So that is very important for you to know the fact that you lack passion in your life, any kind of passion for your job, passion to, whenever you are in a party you will not be able to enjoy, क्योंकि आपको कुछ और ही आपके दिमाग के पीछे चलता रहेगा. So that means there is a lack of identity in you. So that means इसका आपका बहुत ज्यादा आपका प्रॉब्लम है. आपका आप में वो सेल्फ एस्टीम आएगा ही नहीं ना. यू विल नॉट बी, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ ना, यू विल नॉट बी एबल टू टॉक फॉर योर सेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स. देन इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. कहीं पर आप जाओगे, आपको लगेगा कि पार्टी में जा रही हूँ लेकिन सभी के सभी मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन सभी के सभी सभी को ये प्रॉब्लम है, सभी को लगता है कि वो मुझे देख रहा है, बट आपको ये लगेगा कि आपको देख रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्पॉटलाइट इफेक्ट, और आप इसके बहुत बुरी तरह शिकार होगे. आपको लाइफ में लो सेल्फ एस्टीम रहेगा, आप अपनी बात को कभी भी बोल ही नहीं सकोगे. हमेशा आप अकेले ट्रैवल नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आप में लो सेल्फ एस्टीम है. वहां पर आपका सोलर प्लेक्सिस में ह्यूज ब्लॉक है, अगर आप इन चीजों को फील करते हो तो. ठीक है. सो नेक्स्ट वी गो टू द अदर वन विच इज द हार्ट चक्रा. जो हमारा हार्ट चक्रा है, सोलर प्लेक्सिस जो है ना हमारा, वो स्टर्नम के नीचे, जो हमारा ब्रेस्ट बोन होता है ना स्टर्नम, उसके बिल्कुल नीचे. आपने कभी देखा होगा, ये मैं आपको बताना भूल गई, कि आपने कभी देखा होगा ना डाइजेस्टिव इश्यूज आपको बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बार बार लोगों को एसिडिटी होती है, वो उनको ना एसिड रिफ्लक्स भी आता है. एसिड रिफ्लक्स के कारण बहुत लोगों का जो ईसोफेगस है ना, उसमें उसका म्यूकोजा छिल जाता है. बार बार रिफ्लक्स आएगा. आप ये सोचो, रिफ्लक्स का मतलब होता है कि रिगर्जिटेशन, आपके पेट से उल्टा खाना आ रहा है बार बार. तो जो आपका ईसोफेगस है ना, उसके अंदर इनर लाइनिंग होती है. बार बार एसिड रिफ्लक्स आने के कारण वो इनर लाइनिंग जो है वो छिल जाती है. वो इनर लाइनिंग छिल जाएगी तो आपके फिर थ्रोट में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको गैग्स आएंगे, आपको रिफ्लेक्सेस आएंगे, रात को नींद नहीं आएगी. तो आपका सोलर प्लेक्सिस, आपका ब्लॉकेज के कारण उसमें आपके डाइजेस्टिव इशू बहुत ज्यादा रहते हैं, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है. इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, रात को आप सोते हो अचानक से एसिड उछल के आ जाता है विदाउट एनी रीजन, तो इसका मतलब है कि आपके सोलर प्लेक्सिस में ब्लॉक है. उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कारण आपको पता है, जो आपका जो ये वो ओरोफेरेंजियल पूरा का पूरा म्यूकोजा है ना, वो आपका कंटामिनेटेड रहेगा. वहां पर कुछ ना कुछ आपका जैसे वायरस का कंटामिनेशन या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन कुछ भी हो सकता है, एंड इट कैन गेट लीड यू टू सम मेजर इशू ऑल्सो. सो दैट मीन्स योर सोलर प्लेक्सिस इज एक्चुअली ब्लॉक्ड. तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सो नाउ व्हेन वी कम टू द हार्ट सेंटर, हार्ट सेंटर का हमको पता है कि एक्चुअली दिस इज अ डिवीजन. ये हमारे ना यहाँ पर रहता है, जहां पर हमारा बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच आप लगा लो यहाँ पर, और इसके जो ऊपर वाला एरिया होता है यहाँ पर रहता है. क्यों? यहाँ पर क्या है कि ये एक्चुअली मिडल होता है, हमारे जो लोअर जो गट है ना, गट को और हमारे ब्रेन को यहाँ से जोड़ता है. अगर आपको यूं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ट में ना पैल्पिटेशंस होती हैं, आपको एंग्जाइटी होती है ना, आपको ऐसा लगता है कि कभी आपके हार्ट बीट, हार्ट रेट जो ना इधर उधर ऐसे हो रहे हैं, आपको रातों को नींद बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपके हार्ट वाला चक्रा में ब्लॉक है. आपकी लाइफ में कोई पार्टनर जो है वो आ रहा है, लेकिन टिक नहीं पा रहे हो आप उसके साथ. यू आर फ्रैजल्ड कि वेदर टू चूज दिस गाय और दैट गाय, वेदर दिस पर्सन इज मेंट फॉर मी और दैट पर्सन इज मेंट फॉर मी. यू आर कंप्लीटली इन एन ओब्लिवियन कि कौन सा चूज करूं, आपको कोई पता नहीं लगता.
यू एक्चुअली वी ऑल हैव एन इंटेलेक्ट, और हमारे अंदर एक पावर होती है जिसके कारण हम पहचान पाते हैं कि कौन पर्सन मेरे लिए बना है, कौन नहीं बना। लेकिन अगर आपकी हार्ट चक्रा में ब्लॉक है, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई ओनली। हमेशा आपको एक कंफ्यूजन रहेगा कि हाँ, वेदर दिस इज द पर्सन और नॉट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिंड्रोम की तरह हो जाएगा। आप अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट रिश्तों को समझ ही नहीं पाओगे। जब आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट रिश्तों को आप समझ नहीं पा रहे, यानी कि योर हार्ट चक्रा इज नॉट ओपन। आपके पार्टनर्स आपको चीट करते हैं, आपके लाइफ में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तब से भी आ जाती है क्योंकि आपके पार्टनर्स का पता नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जाके इधर उधर जाके उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये वो होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, if your partner is cheating upon you, then it is not his problem. It actually resides in your mind. Outside world does not exist at all. It is there in you who is attracting this kind of partner because you have a block in your heart chakra. If your heart chakra is open, that means that you are actually balancing both your nerve, जो भी nerves आपके nerve वहां से न्यूरल स्ट्रक्चर से आ रहा है और जो आपके गट से आ रहा है, आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हो अपनी लाइफ को। अगर प्यार जो है आपकी लाइफ में टिका रहेगा, आपको बहुत ही लव प्यार देने वाले इंसान मिलते रहेंगे, आपको हर चीज से प्यार हो जाएगा, है ना। और ये हायर चक्र है, ऐसा बहुत आसानी से नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि किसी ने आपको बहुत ज्यादा थप्पड़ भी मारा है, फिर भी आपने लव देना है, उसको प्यार देना, वो आप नहीं दे पाओगे अगर आपका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है। You have to have an open heart to embrace anyone. You have to have a compassionate heart to, understand other person's situation. And if you are not able to do that, if you are not able to find gratitude in other people or other things, that means your heart chakra is not viable. It is not completely open. तो अपने हार्ट चक्र को, जरूरी नहीं है कि आप अगर ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका हार्ट चक्र ओपन है, नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता है। आपको अगर कहीं पर भी हार्ट के में कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, इफ यू थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल, है ना, सी आई इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, है ना, उनको लगता है एंड दे आर इनटू सो मेनी डेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी करते हैं, बहुत सारे लोग सत्संग में जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत सारे करते हैं, बट स्टिल दे हैव सर्टेन कंप्लेंट्स दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम, this relationship of mine is not working. That relationship doesn't have to be a love relationship always, मतलब कोई ऐसा नहीं romantic relationship हो, कोई और relationship certainly means that you have a block in your heart chakra. When your heart chakra is open, that means you are emotionally stable. आपको आपकी इमोशंस को कोई बहुत ज्यादा आके झटका नहीं पाएगा अगर आप, यू ऑलवेज विल बी इन अ काम स्टेट ऑफ माइंड। आप काम स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, आपके लाइफ में जो है ना इस तरह की जो कड़वाहट है किसी के लिए नहीं आएगी। दैट मीन्स योर हार्ट चक्रा इज एक्चुअली ओपन। So you always have to look upon that you will never be having any trust issue because nothing is outside, तो कुछ है ही नहीं ना, अपने अंदर है। आपका चैनल जब ओपन होगा, you will be able to have faith upon the thing and upon the people who are there in your life. It is again very important to have an open heart chakra so that you are able to give love and you are able to receive love. आप चाहे कितना ही एफर्मेशन बोल दो, लेकिन अगर आपके प्रैक्टिसेस में ये चीज नहीं आए ना, अगर आपने अपने हार्ट चक्र को अनब्लॉक नहीं किया, यू विल नॉट बी एबल टू अटेन दैट फ्रीडम। Okay, so again this is very important to have a balanced heart chakra also. Okay, so now when we go, it is very important for us to, फॉर द थ्रोट चक्रा जो है हमारा, जो विशुद्धि चक्रा है, वो हमारा जनरली हमारे लेरिंग्स के यहाँ पर, नेक के यहाँ पर रिसाइड करता है ना। तो आप जब अपने आप की बात, खुद की बात, अपने आप को जानोगे, अपने इनर चाइल्ड की बात आप समझोगे, यू आर एबल टू लिसन टू योर इनर वॉइस एंड यू आर एबल टू कम्युनिकेट इट, then it means that your throat chakra is in a very good condition. अगर आप अपनी बातों को बोल पाते हो, आप सच बता पाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऑथेंटिक होते हो, यू आर नॉट वियरिंग समवन एल्सेस फेस, उसका मतलब है कि योर थ्रोट चक्रा इज अनब्लॉक्ड। If you are not authentic, if you are portraying yourself as someone else but you are not that, that certainly means that there is some, dissolved kachra in your throat chakra, cloud in your throat chakra. You definitely need to clear it. तो आपको बार बार हम बताते हैं कि आपको अगर अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस की पावर को एक्टिवेट करना है, तो आपको सबसे पहली बात क्या होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, है ना, आप प्रेजेंट हो, अभी जहां पर हो वहीं पर हो, ग्रैटिट्यूड। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑथेंटिसिटी।
You are able to say what you feel, even if it is good or bad. No one is judging you. If you are judging yourself, the entire world will judge you. Do not judge कि सही है गलत है क्या है, कुछ नहीं। सब कुछ, कुछ भी दुनिया में सही गलत नहीं होता, सब कुछ सही है सब कुछ गलत है। तो इसीलिए अपने आप को ऑथेंटिक अगर आप बना पाते हो, अगर आप बता पाते हो व्हाट यू आर फीलिंग, दैट मीन्स दैट योर थ्रोट चक्रा इज ओके। यू आर एबल टू टॉक फॉर योर सेल्फ, यू आर एबल टू से द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब ये आपको पता है कि हम लोग बहुत बोलते हैं कि ना मेन आर वेरी लॉजिकल, वो तो समझते नहीं इन बातों, कम से कम वो बोलते तो हैं। अगर हमारे में बहुत सारे लोग ना ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, बट उनको लगता है कि हमारे घर के जो मेल्स हैं ना वो हमें रोकते हैं। कम से कम वो बोलते तो हैं, कम से कम वो चेहरा तो नहीं लगाते हैं ना। कि आप में से बहुत सारे हम लोग ऐसे होते हैं कि जो हम लोग बोलते कुछ और है करते कुछ और है। मेन आर, सिंस दे हैव अ लॉजिकल माइंड एंड दे आर मोर ऑथेंटिक, है ना, उनका हमारा ब्रेन वेट भी हमसे ज्यादा होता है, हमारे बॉडी वेट भी हमसे ज्यादा होता है उनका, क्योंकि गॉड हैज चोजन देम टू बी लाइक दैट। हम लोगों को बहुत कंप्लेन्स रहती हैं, दिस इज रियलाइजेशन दैट वी गॉट रिसेंटली एक्चुअली। हम लोगों को बहुत कंप्लेन्स रहती हैं कि बहुत, मेरे को भी रहती थी बचपन में, हमें लगता था कि यार हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है ना गर्ल्स को ही होती हैं, भगवान ने मेल्स को तो कोई प्रॉब्लम दी ही नहीं है, वो हम लोग ये सोचते रहते थे। और फिर मेरे मन में बहुत आता था जब हम लोग ये पढ़ते थे बायोलॉजी की क्लासेस में, आपने देखा होगा इवन बीएमआई भी अगर आप देखोगे, वेट के हिसाब से भी देखोगे ना, तो मेल्स का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है। वाई इवन द नेचर हैज गिवन देम मोर वेट एंड मोर ब्रेन वेट देन, सेरिब्रल वेट भी हमारा उनसे कम होता है, क्योंकि दे आर ऑथेंटिक। जो उनके मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो, उनका जो टेस्टोस्टेरोन है ना उनके अंदर, वो उनको पर्दा नहीं लगाने देता, वो उनको बोलने देता है। दे आर वेरी ऑथेंटिक। दैट इज वाई ऑथेंटिसिटी के कारण उनकी बातें हर जगह ज्यादा सुनी जाती हैं। कॉर्पोरेट्स में देख लो, सेम पोजीशन में अगर मेल और फीमेल है तो मेल की तनख्वाह हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दे आर एक्चुअली नियर गॉड, बिकॉज दे आर ऑथेंटिक। This is not an issue of being a feminist or being a masculinist, but it is the true nature. अगर नेचर हम लोग पढ़ते हैं ना कि किंग डेविड ने बोला हुआ है कि हमको हर चीज में ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, किसी चीज में कंप्लेन हम लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। तो ये एक रीजन हम लोगों को वहां से मिलता है। सो आई ऑलवेज से ना कि देर इज लॉजिक इन एवरी मैजिक। सो यहां से आपको पता चलेगा कि दिस इज समथिंग विच इज विच गॉड रिवॉर्ड्स ऑथेंटिसिटी। तो अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो तो आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉक है। यू शुड ऑलवेज वर्क फॉर योर थ्रोट चक्रा। ओके, सो नाउ वी गो टू द हायर साइड। अब जो हमारा थ्रोट चक्र का काम हो गया, हमने अच्छे से काम कर लिया, हमने हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारा अग्नि चक्र आता है जो कि हमारा थर्ड आई चक्र है, जो कि क्लैरिटी और इंट्यूशन का है। अगर आपको, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको इंट्यूशंस आते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये होने वाला है। उनको पता चल जाता है कि कल को मान लीजिए आपने कहीं किसी इंटरव्यू में जाना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वहां पर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज दे एक्चुअली ड्वेल ऑन द थिंग्स दैट, उनका ये थर्ड, जो उनका ये तीसरी आंख खुल जाना है, यानी कि दे हैव गॉट अ सम क्लेयर वॉइंस टाइप का हो जाता है उनको, इंट्यूशंस बहुत जल्दी उनको आने लग पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ में आता है कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम अगर है हमारी, तो उनको उसका पूर्वाभास हो जाता है। कभी कई बार हम लोगों ने मूवी देखी होगी ना, वो सिक्स सेंस के नाम से एक मूवी आती थी, और पता नहीं उसमें उन लोगों को पहले से ही पता चल जाता था। माइनॉरिटी रिपोर्ट करके भी एक मूवी आई थी टॉम क्रूज की, उसमें भी उन लोगों को पता चल जाता था कि हाँ भाई क्या होने वाला है मेरे साथ, पहले से ही पता चल जाता था। दिस इज इंट्यूशन। अगर आपके थर्ड चक्र, आपके या थर्ड आई चक्र में ब्लॉक है, तो आपको कभी भी अपने लाइफ में किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं होगी। आपको ये नहीं पता होगा, आप बुफे में गए हो कि आपको क्या खाना खाना है, वहां से शुरू हो जाती है बात। देखिए ग्राउंड लेवल से बात शुरू हो जाती है, आपको वहीं से हो जाएगा कि आपको नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या खाने से मेरे शरीर को, व्हाट इज गुड फॉर माई बॉडी। विल नॉट नेवर बी क्लियर अबाउट दैट। यू विल नेवर बी क्लियर अबाउट योर पर्पस की मेरे को पता है कि ना, सम ऑफ यू आस्क ना कि आई हैव गॉट दिस नथिंग, है ना, मेरे को मैंने कॉमर्स में, मेरे को बहुत अच्छा, मैं एक सीए हूँ, जस्ट सपोज कि आई एम अ सीए एंड आई हैव अ वेरी गुड कंप्यूटर नॉलेज, एंड एट द सेम टाइम आई एम एक्चुअली अ वेरी वंडरफुल पर्सन हु ऑलवेज इज रेडी टू हेल्प अदर्स। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास, मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये स्किल है। बट चूंकि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, इसलिए यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट विच वर्क्स फॉर यू। अदरवाइज यू विल बी एबल टू फोकस। आप में से बहुत सारे लोग यूं भी बोलते हैं कि विजन करना नहीं आता, विजुअलाइजेशन हमसे प्रॉपरली नहीं हो पाती। डेफिनेटली उसका मतलब है कि देर इज सम ब्लॉकेज इन योर थर्ड आई चक्रा, बिकॉज यू कैनॉट फोर सी योर फ्यूचर।
अभी तो वो हुआ नहीं है, आपने उसका पिक्चर बनाना है ना। उस पिक्चर को बनाने के लिए भी यू नीड टू हैव दैट मच क्लैरिटी, कि वहां पर अगर क्लैरिटी होगी तभी आपके पास पिक्चर अच्छे से हो पाएगा। अदरवाइज यू विल बी ओवर थिंकिंग ऑन द सिचुएशंस। किसी भी चीज को आपको, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो गाड़ी चलाते हुए एक इंसान जो है ना, वो उस जो भी ड्राइवर था, उन्होंने ना अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था काफी सारा। तो बहुत ज्यादा यूं टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था, अभी रिसेंटली बात है। टेढ़ा मेढ़ा मुझे लग रहा था कि यार मतलब गड़बड़ है ये तो, इससे या तो दूर रहो या तो फिर जो हाईवे पुलिस है उनको फोन करके बताओ कि दिस पर्सन इज ड्राइविंग इन अ रॉन्ग मैनर, तो किसी और को कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान रहेगा ना, वो वहां पर सोचेगा और घर पे आकर उसको वो चीज भूल जाएगी, है ना। उसको लगेगा कि ठीक है हो गया, और आगे भूल गया। मैं तो जैसे घर पे आके मैं भूल गई थी इस बात को, मैं उस पर ब्रो नहीं किया, उस बीच में इतना सोचा नहीं। लेकिन देर वॉज वन पर्सन हु वाज ट्रैवलिंग विद मी, घर पे आकर भी उनके दिमाग में यही रहा, कहीं उस पर्सन ने किसी को ठोक दिया हो तो, है ना, या फिर कहीं पर मुझे क्या पुलिस को फोन करना चाहिए था तभी। मतलब आपने उस समय पे उस चीज को डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए था। अगर आपने किया होता उस समय पे, यानी कि आपने प्रेजेंट मोमेंट में हो और आपने तभी काम किया, तब आपने अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बात को वहीं पर खत्म करो ना। क्यों घर पे आने के बाद भी उस चीज को ओवर थिंक कर रहे हो, और 3 दिन बाद भी उसी बात को, कहीं उसने ऐसा तो नहीं कर लिया होगा, कहीं किसी और को तो नहीं उसने मार दिया होगा ऐसे, यानी कि आप ओवर थिंक कर रहे हो। और अगर आप एक ओवर थिंकर हो, डेफिनेटली इट मीन्स दैट यू हैव सर्टेन सिक्योरिटी इशू, जो कि आपके रूट से आपको कनेक्ट करता है। यू हैव अ प्रॉब्लम विद द प्रोटेक्शन थिंग, आपको लगता है कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, मुझे किसी ना किसी चीज की प्रोटेक्शन चाहिए हमेशा। और सबसे बड़ी बात है कि आप दूरदर्शी तो हो ही नहीं, आप बहुत ज्यादा चीजों को ओवर थिंक करते हो। नींबू को भी बहुत ज्यादा निचोड़ेंगे तो कड़वा ही हो जाता है ना। इसीलिए अगर आप प्रेजेंट में हो और आप बार बार करके पास्ट की बातों को सोचे जा रहे हो, यानी कि यू आर स्क्वीजिंग दैट लेमन इन अ वेरी हार्डली, और वो आप कड़वा ही होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में रहो, और प्रेजेंट में रह के अपने आप को क्लियरली बताओ कि यस, ये वाला सिचुएशन अभी है, मुझे इस चीज के बारे में सोचना है। जो सिचुएशन पास्ट में हो गई है, कल हो गई है, उसको मुझे सोचना ही क्यों है इतना ज्यादा। अगर मैं अभी आकर पास्ट की बातों को सोचे जा रही हूँ, यानी कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। और ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है ना, अगर मान लो कोई पेज है, उसके ऊपर आपने पेंसिल से लाइन खींची, और उसी लाइन को दोबारा से खींचो, दोबारा से करो, दोबारा से करो, दोबारा से करो, यानी कि क्या हो जाएगा, वो पेज ही फट जाएगा। इसी तरीके से जब आप एक ही चीज को बार बार सोचते हो, वो लूप में घुस कर आपके दिमाग में वही चीज बार बार होता है, इट क्रिएट्स अ ह्यूज ब्लॉक इन द क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ। यू विल बी कंफ्यूज, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आपको अपने लाइफ में कौन से डायरेक्शन में जाना है वो भी नहीं पता चलेगा। ऑल्दो यू माइट बी इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज दिस इज अ हायर चक्र ना, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में भी होगे, फिर भी आप निरुद्देश रहोगे, आपको अपनी जिंदगी के किसी उद्देश्य के बारे में पता ही नहीं रहेगा, आपको विजन करना नहीं आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए जय शेट्टी है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंडिया में आके उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा टाइम बिताया, उनको लगा कि हाँ मुझे ज्ञान बांटना है, मुझे लोगों को समझाना है, आई वॉन्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, है ना, किया। तो उन्होंने यहाँ पर समझा, देन ही कुड नॉट गेट हिमसेल्फ कंटेन्ड इन अ स्मॉल एरिया। उसको लगा कि नहीं, अगर मैं इतने ही एरिया में लोगों को समझा, जैसे मान लो हम है, मैं और सौम्या, मान लो इतने ही एरिया में हम समझाए जा रहे हैं, तो वी विल बी एबल टू हैव ओनली अ स्मॉलर स्पेस फॉर अस। बट दिस वर्ल्ड इज सो बिग, वी नीड टू गो आउट, वी नीड टू एडुकेट पीपल ऑन दैट, है ना। तो उसने क्या सोचा, नहीं मैं बाहर जाता हूं, बाहर जाके मैं पूरे प्लेजर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी करूंगा, एंड आई विल बी एबल टू एडुकेट मोर पीपल ऑन इट, आई विल बी एबल टू टेल मोर एंड मोर पीपल की गाइज, you have got the power to do everything, so understand that you have the power and attain that power। अगर उसके थर्ड आई चक्रा में ब्लॉक होगा ना, स्पिरिचुअलिटी में आने के बावजूद भी उसके घरों में झगड़े होंगे, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के बाद भी वो अगर काम वाले ढंग से काम नहीं करेगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका वो बस वहां जा रही है, पर शी हर चक्रा इज ब्लॉक ना, वो वहां पर वो ज्ञान आ ही नहीं पा रहा है। वहां पर जा रहे हो, आपको लोग समझा रहे हैं, आपको गुरु समझा रहे हैं, आपको मेंटोर समझा रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है, आपको आपके पल्ले कुछ बात पड़ी नहीं रही है। अगर आप अपने थर्ड आई चक्र को खोलते हो तो वो बात भी आपके पल्ले पड़ेगी, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो अग्न चक्र है वो आपका खुला रहे। उसके बाद आता है जो आपका हायर चक्र होता है, वो क्राउन चक्र। अब इस चक्र के बारे में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। आर स्टडी में उस दिन सौम्या ने हमें बताया था कि क्राउन चक्र जो है बिल्कुल आपके ऊपर है ना, सहस्त्र बुद्धि चक्र होता है यहाँ पर कहीं,
इट एक्चुअली रिसाइड समवेयर हियर। अगर आप यहाँ पर हाथ लगा रहे हो यानी कि आप यहाँ पर टच कर सकते हो। कोई आपको बोलता है कहीं पर होता है, कोई आपको बोलता है कहीं पर होता है, लेकिन ये वाला चक्रा जो है आपका जब खुलेगा तब आपको दुनिया भर की विजडम आएगी। वो एक्सटेसी का फेज होता है, दैट इज एक्चुअली एनलाइटनमेंट। वहां पर कोई कोई ही पहुंच पाता है। अगर मैं ये बोलूं कि बहुत सारे गुरुज की बात बोलूं कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा डीप इनटू मेडिटेशंस करने के बाद, अपने बाकी सारे चक्रास का रूट को क्लियर करने के बाद, फिर आप कहीं जाके कोई कोई जाकर वहां पर पहुंचते हो। और जो वहां पर नहीं पहुंचता ना उसको, एक्चुअली जब आपका थर्ड आई चक्रा क्लियर हो जाता है ना, तभी आपको लगता है कि हाँ पीस मिल गई, मुझे शांति मिल गई है। एंड दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉर, पीस इन आवर लाइफ। सो समटाइम्स पीपल एक्चुअली स्टॉप देयर जर्नी देयर ओनली। बट देन सहस्त्र वाला जो चक्र है, वहां पर जाके आपको लगता है यू आर ऑलवेज एक्सटैटिक, यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ एनलाइटनमेंट। आपको पता चल जाएगा, आपको दिन रात किसी भी, आपको कोई, आपको हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, आपको हमेशा अपने लाइफ में एनर्जी मिलेगी। आपका ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि वो जैसे महात्मा बुद्ध का होता है ना, वो पूरा का पूरा हेलो उनके चार ऐसा क्रिएट हो जाएगा। वो तब होगा जब आपका सहस्रासर चक्र जो है वो क्लियर है। सो दिस वे आपको अपने सारे लाइफ में सारे चैनल्स को, सारे जो चक्रास हो, उसमें आपको क्लियर करने का बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अदरवाइज यू विल बी फ्लोटिंग इन डाउट। आपको स्पिरिचुअली पूरी तरह से कनेक्ट होने के बावजूद भी आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आपके पूरे सिस्टम में जो है ट्रस्ट हो ही नहीं पाएगा कभी आपके लाइफ में। सो दिस इज व्हाट द एनर्जी सेंटर्स और द न्यूरल प्लेक्सेस आर अबाउट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने भी न्यूरल प्लेक्सेस है, जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स है, दोज नेटवर्क्स व्हेन दे गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस, उनको ब्लॉक को ठीक करने के लिए, उनके ब्लॉक को खोलने के लिए, वी हैव टू फीड आवर सेल्स विद गुड फूड एंड वी हैव टू कनेक्ट विद आवर सेल्स टू क्लियर दोज ब्लॉकेजेस। So that is why we at Brain to Body Revolution have come with a wonderful program of healing, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके जितने भी चक्रास हैं वो खुल गए हैं। आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, आपकी न्यूरल रीवायरिंग कंप्लीटली बहुत अच्छे से, जितने भी आपके, क्योंकि वो न्यूरल सेंटर्स हैं ना, जितने भी आपके न्यूरल प्लेक्सेस हैं, जो भी आपके सोलर प्लेक्सेस हैं, आपका सेक्रल प्लेक्सेस है, वो सारे प्लेक्सेस ही होते हैं एक्चुअली। वो जितने भी वो गुच्छे हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे, वहां पर आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। यू विल बी गाइडेड विद न्यूट्रिशन कि आपको ये वाला चीज करना है, उसके हिसाब से आपको बहुत सारे जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्लैरिटी इन लाइफ है, वो सब कुछ आपको तभी मिलेगा। यू विल बी एबल टू हैव अ फ्री फ्लो ऑफ अबंडेंस इन ऑल द चक्रास ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो आपको सेफ्टी होगी, आपको आपको कभी भी इनसिक्योर नहीं फील होगा। यू विल बी एक्चुअली एबल टू एक्सपीरियंस एन एक्सटैटिक लाइफ। You will be having wonderful great relationships with your partner, with your family members, like that. So इस तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर आए भी तो आपको उनको हटाने का बहुत आसानी से तरीका पता चल जाएगा। आपको ये नहीं होगा, आपको ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, आई एम प्रैक्टिसिंग दैट, स्टिल माई आई एम डूइंग एफर्मेशंस, आई एम डूइंग, मान लीजिए मेडिटेशन में बहुत समय से कर रही हूँ, फिर भी आई एम नॉट एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। दैट डेफिनेटली मीन्स दैट यू नीड टू हील योर चक्रास, यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास। सो दैट इज वाई आपको, जब आपको ये लगे तो आपको अपने चक्रास को, अपने न्यूरल प्लेक्सेस को बैलेंस करने की और उनको हील करने की जरूरत है। वो हम लोग हील नहीं करेंगे ब्रेन टू बॉडी में, वो सौम्या हील नहीं करेगी, वो और नहीं हील करेगा, वो आप हील करोगे। वी विल एक्चुअली सर्व यू, विल एक्चुअली शो यू द पाथ टू हील योर सेल्फ। नो वन, लाइक हम, वी आर नॉट, विल बी, आई बी लाइक एज प्रिया नेहरा, आई बी हीलिंग माई सेल्फ। एज सौम्या, सौम्या विल बी हीलिंग हर सेल्फ। और आप जो भी हो, आप सभी born healers हो, you do not need anyone else to heal you, you will be healing yourself, but you will be receiving the guidance to heal yourself completely, because God, when he gave us birth, उन्होंने सभी को वही तो दे रखा है ना। आपके पास जो है हमारे पास भी वही है। हम सभी को परमात्मा ने पूरी तरह से सक्षम बना रखा है। एज वी नो दैट आवर एंटायर बॉडी इज नथिंग बट अ टेम्पल। हमारी बॉडी के अंदर ही फार्मेसी है, हमारी बॉडी के अंदर ही सारे भंडार है। बस उस भंडार को शायद हम लोगों को यूज करना नहीं आता, जो कि हनुमान जी को भी नहीं आता था। हनुमान जी को भी याद दिलवाने के लिए जामवंत को आना पड़ा। जामवंत जब आए, उनको याद दिलवाया कि भैया तुम्हारे पास तो इतनी पावर है कि तुम ये सारा का सारे जो समंदर है वो एक दिन में लांग सकते हो।
उनको पता चला अच्छा ऐसा है क्या, उनको भी अपनी शक्तियों का याद दिलवाने के लिए किसी और को आना पड़ा था, हनुमान जी को। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में, आप सभी की लाइफ में भी हम लोग आपको हील नहीं करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि दिस इज द वे, दिस इज द रियल वे, दिस इज द ट्रू पाथ टू गेट इन टू द विजडम विच यू आर एक्चुअली बॉर्न विद। समय समय के टाइम के साथ हम लोगों के दिमाग में कुछ कुछ है ना, कार्बोरेटर में, जिस तरह के कार के कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है ना, उस तरह से कचरा आ जाता है हमारे न्यूरल प्लेक्सिस में। उनको बस अनब्लॉक करके आप देखो, लाइफ में आपको इतनी ज्यादा हैप्पीनेस हमेशा आपको रहेगी, तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज वेयर वी वर लैकिंग मे बी। सो या, this is what about the thing that we have for you, that this is a 8 day program. We'll be actually devoting one by one, एक एक दिन आपके हर एक चक्र पे काम करेंगे, और 8th day में we'll be actually telling you how to balance all that. We'll be providing you the nutrition guidelines also, and everything will be given to us कि आप कैसे अपने आप को खुद अपने हाथों से अपने मन से हील कर सकते हो खुद को। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम दैट विल बी रनिंग फ्रॉम 22nd of December to 28th of December, नहीं 30th of December, आई गेस। हाँ, 8 दिनों का 30th, प्रोग्राम है। 30th, हाँ, yes. 22 से लेके 30 तारीख तक रहेगा ये। एंड या रेस्ट आपको सौम्या बताएंगी उसके बारे में। हाँ जी सौम्या। Yes, and And Soumya, if you want to really add into something that I might have missed out, then please go ahead. Thank it you. was so spectacular. I was just like, there was so, like, I was listening to you, and more and more things started making sense in my head, like, Everything makes sense, Soumya, when we, सब कुछ क्लियर हो जाता है यार। जब हम लोगों को चीजों को समझ भी नहीं आता था, बट एज वी वेंट एंड डिड दिस प्रोग्राम, एंड उसके बाद हम लोगों को जैसे वो खुलते हैं ना, दिमाग में गुच्छे खुलते जा रहे हैं, एंड एक एक चीज समझते हैं आती जा रही है। सौम्या, यू एंड आई व्हेन वी डिस्कस ना, कितने सारा विजडम तो तब आ जाता है ना डिस्कशन से, कितनी सारी चीजें तब क्लियर होने लग पड़ती हैं। सौम्या को भी रियलाइज, दीदी पता है टुडे आई रियलाइज दिस, हाँ सौम्या आई रियलाइज दिस। तो इस तरह से वी कीप ऑन डिस्कसिंग दीज थिंग्स। सो ऐसे ही होता है जब आपको अपने ऊपर काम करते हैं ना, जब हम लोग अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम लोगों को डीप माइंड जिम करते हुए बहुत समय हो गया है हम लोगों को। तो आई डोंट नो कहाँ कहाँ से चीजें इतनी खुलकर आ रही हैं ना, कि हम लोगों को खुद को यकीन, और एंड वी हैव नॉट स्टार्टेड इट एनीवेयर, फिर भी दिस विजडम कम्स एंड फ्लाइज एंड सिट्स इन आवर हेड, एंड वी आर रेडी टू गिव इट टू द वर्ल्ड दैट यस, इफ वी नो दिस, एवरीवन हैज गॉट द राइट टू नो इट। सो दैट्स व्हाई, यस सौम्या, ओवर टू यू। so one thing जब आप बोल रहे थे, we both have read this, we are reading upon this every day, we are researching more and more, but still है ना वो इमेज बैठा था, वो 7 चक्रास का, वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा था। वाई टू स्पीक ऑफ अदर्स, आई विल टेक माई एग्जाम्पल, मेरे दिमाग से ही नहीं हट रहा था, एंड हियर वी आर टेलिंग अदर्स टू नॉट सी द कलर्स एंड चक्रा, विजिबल चक्रास ना देखो, एंड आई वाज लाइक क्यों हो रहा है, सिंस लाइक 2-3 days आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड आज जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, it clicked. And how it clicked, guys, just see, it's reverse psychology, है ना? If we say to you guys, see a green color, green color here, ठीक है, आपका हार्ट पे ग्रीन कलर देखो, आपको अगर वो दिख जाता है, आपको अगर वो दिख जाता है, what is your mind thinking? Oh, I am a giver of love. So automatically क्या हो रहा है, you become love. Is it clicking? Red light दिख रहा है नीचे, रेड चक्रा दिख रहा है. What is your association with the red chakra now? Insecurities. अरे मेरे को रेड चक्रा दिख रहा है तो I'm secure. तो you'll start behaving like a secured person. Everything comes down to your feelings. Everything that is designed so you start feeling, because feeling is the ultimate frequency. One second. Yeah, because of feeling the system, the whole entire system is running na. तो ये जो क्लिक हुआ ना, सो दैट्स व्हाई द वेस्टर्नर्स हैज मेड इट सो इजियर फॉर अस। Doable, हाँ। वही आप प्राणा प्राणा बोलोगे, you will not be, and neither it is possible to give up everything and go sit somewhere isolated and do it. It's not possible. But when you start seeing like that, you start becoming that person. ओ मेरा हार्ट पे हार्ट चक्रा दिख रहा है, मेरे को ग्रीन दिख रहा है, ओ आई कैन लव एनीबडी, दैट्स योर माइंडसेट, दैट्स हाउ यू स्टार्ट बिहेविंग, ओ आई कैन लव एनीबडी, बिकॉज मेरा ब्लॉक ही क्लियर हो गया, बिकॉज यू स्टार्ट बिलीविंग इट, योर आउटर सर्कमस्टांसेस स्टार्ट्स चेंजिंग, Yeah. बिकॉज यू थिंक मेरा थर्ड आई खुल गया, यू स्टार्ट like you'll say, oh, I'm now intuitive. So आप by birth intuitive है भाई, you are by birth, it's just you are not aware. And what this
course is going to do for you is create this entire awareness that who you are. And then बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं ये रोज कर सकती हूँ. भाई, when you become aware, you are aware 24/7. आपका पूरा अवेयरनेस आपके साथ चलेगा. आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी immediately you feel some disturbance in yourself. You'll be aware where the disturbance is. दीदी ने एक्चुअली आप सभी को डाइजेस्ट करने के लिए ना बहुत सिंपल तरीके से समझाया है. बट इफ वी एक्चुअली गिव यू द एक्चुअल स्टडीज दैट दे हैव डन ऑन दीज एनर्जी सेंटर्स, आपके बॉडी में ये जो मेजर प्लेक्सस करके दीदी बोल रही थी, यहाँ पे नर्व्स की गुच्छा है, यहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके इमोशनल सर्किट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपका फाशिया कॉन्सेंट्रेटेड है. यानी कि आप जो भी फील करते हो ना, वो सब आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं. बिकॉज ये आंखें पढ़ रहे हैं और आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज वी डोंट वांट टू फील सैडनेस, वी डोंट वांट टू फील एंगर, वी डोंट वांट टू फील फियर. हम भाग रहे हैं इन चीजों से, है ना. वी विल फील हैप्पीनेस, वी विल फील जॉय, वी विल फील एक्सटेसी. वो उनको पूरा भरपूर एंजॉय करते हैं. बट वी डोंट वांट टू फील दिस थिंग्स. तो क्या हो गया ना, वो वहां आके जम गए हैं. So when you become aware of these points, you'll be like, okay, this is where I feel this, this is where I feel that. Okay, I'll let it go. I'll let it go, or I'll keep it. I'll let it go. It's up to you. This is one point. I was just blown, so I had to make a point. And you guys won't believe it. जो क्राउन चक्र है, जो सिर के ऊपर थोड़ा लेविटेटेड पोजीशन में है, बहुत लोगों ने हमको पूछा है, दीदी मैं तो इसमें बहुत दिनों से कर रही हूँ. आई एम डूइंग ग्रैटिट्यूड, आई डू मेडिटेशन, बट व्हाई कांट आई टॉक टू यू गाइज लाइक दिस. वी हैव गॉट इट मल्टीपल टाइम्स. एक डीप मेडिटेशन में, व्हेन यू गो इनटू डीप मेडिटेशन, एक न्यूरो साइंटिफिक इवेंट होती है जो हमने रील में भी डाला था, नेटवर्क मोड डिसोल्यूशन, ऐसे रेफरेंशियल मोड डिसोल्यूशन. इसका सिंपल मीनिंग ये है, जब आप अपना आइडेंटिटी खो देते हो, व्हेन योर ईगो डिसॉल्व्स. ईगो इज व्हाट? आइडेंटिफिकेशन. मेरा नाम ये है, मैं ये काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, ये. एज लॉन्ग एज योर ईगो इज देयर, द सहस्रार कांट ओपन. इफ यू कैन कम एंड टॉक टू मी or Didi, when we're taking session, not when we are sitting and chilling, okay, that time we are we only, but when you're talking to you as a person, or abhi bhi jab hum tribe meetup kare, we have no identity, we are no body, no mind, we are completely lost. हमको इतना सारा information मिल रहा है अभी भी. Right now when I'm speaking, there's so much information coming. I want to just talk because there's so much we want to give, because universe is so abundant. Universe is like, you want this answer, take. You want that answer, you take. That is when your crown chakra is open, you can say. Major realizations happen only this authenticity wala. I was taking session with Rachna, then it came into my mind, Rachna agar wo hai to Yeah. bata sakte. Achanak se it came. So it happens like that. That means that your crown is open. Your ego needs to dissolve. And when is your ego going to dissolve? In deep meditation. कब? एक दिन deep meditation कर लिया तो क्या? नहीं, रोज करना है. रिपीटेशन. ये भी एक याद आया, आपने एक एड को कितने बार देखा होगा? ले लेते हैं कैडबरी सिल्क का ही एडवर्टाइज. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन इट ऑन द स्क्रीन? काउंटलेस टाइम्स. दैट इज व्हाई whenever you think of chocolate, the first thing that comes to your mind is Cadbury chocolate. Am I right? कोई एक बार ही एडवर्टाइज करके छोड़ेगा ना, आपके दिमाग में नहीं याद रहेगा. Because the advertising, the humans know repetition means remembrance, means recreation. आपको रिपीट करना है, एंड देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस. कोई शॉर्टकट है नहीं, आप पूछो ही मत किसी को. ठीक है. ईगो डिसॉल्व होगा तभी आपका क्राउन चक्र खुलेगा. जब क्राउन खुलेगा, देन यू विल एक्सेस यूनिवर्स, एंड द यूनिवर्सल एक्सेस गिव्स यू ऑल द आंसर्स. ओके. एंड देन यू विल नॉट बिलीव इट, हम दोनों ने जब वी वर जस्ट टॉकिंग, हमारा बिजनेस चैटिंग था, वी जस्ट सेड, जस्ट दीदी आस्क्ड क्या करते हैं अगले मंथ नवंबर में, शादी के बाद, मेरी शादी के बाद वी वर टॉकिंग, एंड वी सेड वी विल डू ऑन चक्रा हीलिंग, इज व्हाट शी सेड. And you will not believe, if you can just go and search in the web right now, you will see multiple mentors, and especially Joe Dispenza is taking energy center healing this season. Why? All of us want you guys. This is the higher consciousness. It's not my intention or the intention. It's the higher consciousness intention that you guys step into 2026 with awareness of who you are.
Okay, this is not small purpose. This is not petty thing. This is higher potential, higher talking to you all guys. So we were so shocked when we discovered this as well. And then coming to the program itself, and if you go once again, let me share the screen. I want to show the poster. Is it visible? Yes, it is visible. You may need to zoom it a little bit more. Okay. Okay. Is it now? Okay. जूम तो नहीं हुआ बेटा. प्रेजेंट वाला मोड में चले जाओ ना, तो फिर वो जूम हो जाएगा. प्रीव्यू कर दो या तो. हाँ, रुको रुको रुको. हाँ हाँ, अब जूम हो रहा है, ठीक है. ठीक है, थोड़ा दिख सा रहा और जूम हो जाए तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा. है? अरे यार. कोई बात नहीं. इट्स अपना ही लाइक, कर रहे हैं, हमने कर लिया जूम अपना। ओके, वन या सेकेंड. फिर व्हाट्सएप में से भी ना जो पिक्चर है ना उसको जूम कर लेंगे तो इजी हो जाएगा. यस, नाउ थोड़ा सा जूम कर दो इसको. एक सेकेंड ना. हाँ. नहीं आ रहा है वो. नहीं आ ठीक है. रहा. डू आई डू इट? हाँ, देखिए आपके पास हो सकता है तो. मैं करती Okay. हूँ. So what we want to mainly share with that thing is whatever we have studied about chakra, जो आप जिस authenticity से आपको ये सब डेटा दे रहे हैं, ये authentic डेटा ये प्रोग्राम के साथ आएगा. इट इज अ बिग, इट विल बी अ गुड नाइस 10-15 pages का बुक रहेगा that you will be getting, because we want you to be aware, and you can also, when you're talking, you talk sensibly to others, है ना? That is first thing. Second, of course, everyday recording रहेगा, and this will be valid for another 7 days. Program के बाद इसका duration. Then you will be doing a simple nutrition program, because like Didi was saying, your gut needs to be healthy, everything needs to be light, feeling light, then only the flow of energy will be light. So we'll be giving you a specialized plan for this 7 days, so you'll have to be following that for better experience in that. And lastly, we will be okay. आया सौम्या? हाँ, पढ़ा? completion certificate, of course, and we will be there 24/7 to handhold you. And the course comes at 8,000, which is 1,000 per day. Okay, if you break it down like that, and you'll see it's not much. If you go and do the same with elsewhere, it's not nice. But we were like, we need minimal transaction to make you feel that difference. Only when you feel that you have stretched yourself a little, that's when you will feel the effect of what you have done. And for tribe members who are actually our existing members who are part of any of our programs, we give it at 50%, and there's a very good viable reason for that. That's because their gut is much more healthier. They are actively doing mind gym sessions, which is actually opening a lot of their energy. A lot of people are realizing things, they are becoming intuitive, they are manifesting, they are becoming calmer, they're becoming present. So many of them have reached halfway over there. So that is why we give them at 50% off. And since there needs to be an energy transaction, we request them to pay. That's it. That's the reason. We'll conduct it from, sorry, there's a slight error in this poster, that is from 22 to 30th December. So when you step into new year, you step with not new you, okay? You step it with yourself, being fully aware of who you are. Updated version. It's just a better version of who you are, okay? Because you'll finally know your potential. So that is the reason. This is the gift we want to give from Brain to Body Revolution to all of you, to see who you are, because you guys are so beautiful and so magnificent and so powerful. And when you guys come with your problems, we're like, oh my god, only if she could see how she can just turn this around, and we want you guys to feel that. So that's the reason. Hope you got a lot of info today, and if you have any questions, we are open, है ना? हाँ, 7-19 हो गए. बट वही है, हम लोग लाइक यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ. यू आर दैट पावरफुल दैट यू विल बी हीलिंग योर सेल्फ कंप्लीटली. सो वी आर जस्ट शोइंग यू द वे, द वॉकर, द पाथ एक्चुअली विल बी फॉलोड बाय यू, एंड यू विल बी. उस समय देखो आपको कितना अच्छा लगेगा कि यस, आई एम द हीलर एंड आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ माई लाइफ. नो वन एल्स इज. यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ योर लाइफ, एंड यू विल बी डूइंग दैट. यू हैव एंटायर थिंग इन योर माइंड, एंड यू विल बी एक्सरसाइजिंग योर पावर टू हील योर सेल्फ. Please have this during day, so can join next time. The tribe meetup, you mean? Did you have to stop sharing your screen? Okay. हाँ.
Anu, you mean the tribe meetup? No, I mean the chakra thing because it's very late when you have it, and हाँ उसको there's बताओ. no point of watching my uh, recording afterwards. I Why? understand that Why? you need to sleep after this. You need to go So, to sleep. so you can do. So people who are not in India and who are there abroad, you can take the recording because your energy. We all know energy can be transmitted. We all know Reiki healing, right? I can sit here and I can transfer energies elsewhere, right? So energy is not confined to यहाँ पे रहना, nothing like that. Your belief matters the most. Why we want you to do is that you take whoever wants to do it and you are not in the Indian time zone, this is the outlet. You do it at the time just before you go to sleep. Take the recording, do it 100%. You will be in the tribe, you will get the group energies, you will get the healing. When we both are directing, your presence will be here. And And the most important thing is here we'll not be having any explanation sort of thing. Na? This no, will be intense healing session. So if you can afford to be alone at your house and just before you're going to sleep, you have to do that. That's all. It is not we are live energy का इसमें वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर we are guiding you for the meditation or for the mind gym session. है ना? तो इस ऐसे होगा. It is not कि हम लोग कोई explain करेंगे उस समय आपको. That will be complete intense healing and that guidance will remain with you, the recording will remain with you and you can practice that. So and this time it doesn't cause any difference. जैसे हमारा मनी कोर्स के टाइम पे you had to give your 3 hours उसमें तो उसमें different था because we were explaining techniques and all that. इसमें आपका intense healing है and that must be done in a quiet environment. the reason why it is night is we could not do it in the morning because morning ke 5 sessions will be available for you guys. So that is an add-on, so which we have missed putting in the poster. 5 a.m. ki mind gym session will be there for whoever registers for the course. Subah bhi hoga. So we have two times where we can do this session, either morning 5 a.m. or in the night. Because morning 5 a.m. we are not going to disturb. So we हाँ. have to do it in the night because we want you to go to sleep right after this so that don't have any counter thoughts that will undo the work that you have done in the 1 hour. And Okay. you are in the deep relaxation mode ना उसमें क्या है आपका मेंटेनेंस सारा झाड़ा पोंछी तो तभी होती है ना जब आप सो रहे होते हो तो इसीलिए यू हैव टू गेट मैरिनेटेड इन दैट एनर्जी इस कारण से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो इनटू स्लम्बर आफ्टर द डीप हीलिंग सेशन. Rituji, Thank you. thank you, You Anu, Anu. for was, beautiful sorry, I was advising Anu that you start your first day on the second night of yours. हाँ हाँ Yeah, हाँ. Lovely है ना. yeah. Yeah, that can be done. I was thinking maybe next time because 24th my sister is coming and 19th Ria is coming Oh, so and they're all going to be at home. So it might not work this time for me हम्म. Yes, 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 that's definitely a choice and I can go with that. But Ritu. हाँ जो because हाँ जो दूर रहते हैं हमसे जो कि इंडिया टाइम जोन आईएसटी में नहीं है उनके लिए रितु जी का बहुत अच्छा सुझाव है ये कि आप अपने टाइम जोन के हिसाब से यू डू द नेक्स्ट मॉर्निंग yeah. नेक्स्ट डे का उस दिन करने का बहुत अच्छा सुझाव है ये. थैंक यू थैंक यू. Thank you so much, Ritu. I would love to do, but this time the house is going to be like December is going to be until 4th January. They're all It going to will be be in here. high celebration mode. Yes, yes, yes. And Okay, this great, time great. I won't. Next time I will. Thank you for that. Thank you. Any Rituji, any more questions you have? And Oh, thank you Ritu no, ji for thank you, registering with us. Rituji, for joining. I so much want to do this. Last time it was 3 hours. I couldn't manage that. You know, the financial ones. Yeah, 72 hours money. It was very too much. because So, we were using the power of 3 and 9 and 6 and like that. Hence, we had to do it like that. I I know. need to leave. Yeah. I have a call. Yes, yes, yes. Please Thank do. you. We are Thank you so almost much. end of the session anyway. If nobody has any question, if every doubt is cleared about the chakras, Uh, do we have chakras, people? Everybody should be like, why is she saying or chakras? else you can collect your queries and we can see we can whether we can have a Q&A session the next week or not. ठीक है ऐसा कर लेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लीजिए एंड यू कैन डीएम अस मेरे को कर सकते हो डीएम सौम्या को कर सकते हो तारा को कर सकते हो आप डीएम कीजिए जो भी आपके क्वेरीज हैं तो विल बी हैप्पी टू आंसर यू एंड देन वी कैन मे बी कैरी ऑन अ Q&A सेशन द नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फ्राइडे को क्योंकि हमारी जो कोर्स तो 22 से शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट फ्राइडे वी कैन प्लान समथिंग लाइक दैट. आज की रिकॉर्डिंग तो नहीं है अभी वाली.
है नहीं join है, date. वो है? रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब में डाल देंगे रितु जी हम लोग ना अभी। Okay, okay, fine. ठीक है. Thank you. थैंक यू सो मच। या रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। Even I checked that first thing. See, overthinkers. मैंने भी 2 बार चेक किया, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैंने 2 बार check नहीं, a few सब minutes back overthinkers I बाहर आ didn't रहे हैं अभी, see. सब overthinkers A few minutes back I saw recording was not on. That REC was not showing at all. वो गायब हो जाता है बीच बीच में ना, Okay, रिकॉर्डिंग okay. तो शुरू में चालू कर दिया था सॉन्ग। Yeah, okay. Thank you. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर सबके योर सबके वैल्यूएबल टाइम। सोलार प्लेक्सस को हमको ठीक करवाने पड़ेंगे। हाँ, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। I'm so looking forward to the 22nd. Oh, we too. Same here, We are same so here. excited. Yeah. Everybody's welcome. We are open arms. Let's step all of us together into 2026 with newfound energies and newfound us, and Yeah. have a vibrant 2026, because 2025 was very colorful, है ना? Yeah, for all of us. Since our Soumya Yeah. also got married in 2025. Easy to remember. Okay, guys, thank you. Love you. Okay, thank you so Thank much everyone for your precious, valuable time. We always look forward to meet you guys in this Tribe meetup. It's so much fun and the exchange of knowledge that we do. So thank you so much. Love you guys. You may follow us in the YouTube and in the Instagram. And for your queries, we are open. You can DM us, you can call us. You have our number, so please do that. And thank you so much for your precious time. Have a great weekend. Have a lovely time. Thank you so much from the entire team. Thank you, Priya. Thank you. Thank Thank you so Soumya. much. Love Good you night. all. Thank you so much. Thank you. Good night, We will Mani. make a move and we'll share we will upload it in the YouTube and you can watch the recording again if you want. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.